Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Lord, thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We magnify your holy, mighty name. You are worthy to be praised, oh Lord Jesus. Oh Lord, our one and only, oh Lord Jesus. Our, oh Lord Jesus, Father, oh Lord Jesus. Our eternal Father, oh Lord Jesus. Our loving Father, oh Lord Jesus. Our caring, oh Lord Jesus. Father, we give you glory. We give you honor. We worship your holy, mighty name. We worship your name, O Lord. We magnify you, O Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we come into your presence, O Lord. Take complete control over us. Take complete control over us. Take complete control over us. Have mercy upon us, O Lord, as we come into your presence, O Lord. Fill us with your power, with your spirit, O Lord Jesus. Heavenly Father, we pray, let, O Lord, your power flow through us, O Lord. Let every chains break, let every bondages break, Father, O Lord. Whatever we speak, O Lord, may we speak through your will, through your, O Lord, guidance, Father. We pray, O Lord Jesus. Bless our mouths, O Lord. Bless our hearts, O Lord Jesus, that you, O Lord, may be, O Lord Jesus, the particular of each and every of our words, O Lord, whatever we may say, whatever, O Lord, we may speak, O Lord, shall be through you in Jesus' mighty name. We give you glory, we give you honor, we adore your holy, mighty, precious name. In Jesus' mighty name we pray. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I give all glory and honor to God because of His majesty, because of His loving kindness that He has given upon us. And on this special occasion of Mother's Day, I would like to wish each and every mothers out there a very happy Mother's Day. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें समय, ये मौका, ये दिन दिया है और परमेश्वर की दया, प्रभु ने हमारे साथ ऐसा होने के लिए हम इस तरह से रहे, ये परमेश्वर की ओर से। और आज हम सबको शुभकामनाएं देते जो इस वक्त माँ है और जो माँ की भूमिका निभा रहे, जो जिसको परमेश्वर ने किसी न किसी तरह से बड़ा होने का आदर दिया है, उनको हम इस वक्त शुभकामनाएं देते हैप्पी मदर्स डे के द्वारा। We celebrate this day to celebrate that thing, that just one point, that inch of motherhood that God has put under every woman, that God has put under every mother, that is so, it is in the likeness. It shows us every motherhood, every love of a mother shows us that what is the love of our true father, how does our God loves us, how does he protects us. Hallelujah. उन सारे स्त्रियों के अंदर जो परमेश्वर ने एक माँ का स्वभाव, एक माँ का हृदय, एक माँ की तरस, एक माँ का जो माँ जैसे करती है उसका इच्छा भावना दिया है, जैसे हमारा पिता परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, उस तरह वो एक माँ के द्वारा हमें परमेश्वर हमारा है वो दिखाता है। हालेलुया। When God made a woman, when God made a mother, God took more time. God took a more time to make her. God took more time to create. May be so caring, that she may be so loving, just like him. Hallelujah. और परमेश्वर ने जब माँ को बनाया, उसने पुरुष को पहले बनाया था, बाद में स्त्री को बनाया। और जब उसने स्त्री को बनाया, वो स्त्री का क्या उसका ये रहता है काम, वो परमेश्वर ने सोच के उस तरह से उसको एक अलग रीति से, एक अलग स्पेशल रीति से उसको बनाया है। उसके अंदर उसने एक जो आदमी रहता है उससे अलग उसको चीजें रखी, उसके अलग चीजों के द्वारा उसको बनाया है। Hallelujah. When God was making a mother on her 6th day after making the first man, he was just making her feelings, she was making her strong. When an angel came and asked God that why are you wasting so much time on the woman, why are you making her so strong, why are you making her so soft from the inside but hard on the outside. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. जब मनुष्य एडम को बनाया पहला दिन में, और परमेश्वर ने उसके 6 दिन के बाद स्त्री को बनाया, और स्वर्गदूत आके उसको पूछ रहे थे कि तूने इतना दिन, इतना समय स्त्री को बनाने के लिए क्यों लगाया।
because God told the angel that I want to make her in my likeness, that every generation that comes through her will receive the love that they Praise will the find Lord. with me through this very woman. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि मैं इसको एक अलग तरीके से बनाऊंगा, जो इसको स्त्री को देखेगा या इसके कार्य को देखेगा वो मुझे दर्शाएगी सारे करने के द्वारा। इस रीति से मैं स्त्री को बना रहा हूँ। हालेलुया। Hallelujah. God was having problems while making a hand, because the angel was again and again asking God that why are you having so much problem creating? And when God answered, he said that I am having problem making these hands because these hands are multitasking. Just one touch, just one hug with these hands, and every pain, every sickness of the child or the husband will just vanish. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर को जब बार बार वो आके सवाल करता था स्वर्गदूत की ये हाथ को बनाने के लिए इतना टाइम क्यों लगा रहा है, समय क्यों लगा रहा है, परमेश्वर ने कहा ये हाथों को एक अलग तरीके से, अलग अभिषेक के द्वारा मैं बना रहा हूँ, ताकि ये हाथ जिस किसी को भी छुएगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे उसका पति हो, चाहे उसके कोई भी परिवार के हो, उसको एक अलग कर देगा, अलग बना देगा। इस तरह मैं इन हाथों को आशीषित और एक अभिषेक के द्वारा बना रहा हूँ। हालेलुया। Hallelujah. God had her in completely soft, some completely calm, some completely kind from the inside and from the outside. She was like a soldier. She was like an army officer. She was strong. She was ready to endure any pain for her family. She was ready to go through any circumstances for the sake of her loved ones and for her family. Hallelujah. Praise the Lord। और परमेश्वर ने स्त्री को बहुत ही अलग रीति से बनाया, उसको इतना मजबूत और इतना एकदम मजबूती से बनाया है। वो एक जो आर्मी होते, एक जो सोल्जर होते, वो उनके अंदर उनके समान उनको सामर्थ्यवान बनाया कि वो हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए कहीं पर भी, कौन सी जगह में भी खड़े हो जाते हैं और उनके लिए, उनके बचाव के और उनके सुरक्षा के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। Hallelujah. When God was almost done making her, when God was almost done creating her, at that time God saw, the angel saw a leak, a small drop of water in her cheeks, and he asked God that there is a leak in her. You put so much effort in her, you put so much inside her, and now she is leaking. Hallelujah. और जब वो परमेश्वर उसे बना रहा था, वो स्वर्गदूत उसे देख रहा था, तो तब उसने एक छोटा पानी का बूंद उसके गाल की तरफ उतरते हुए उसने देखा। तो उस स्वर्गदूत ने परमेश्वर से पूछा कि हे प्रभु देख, इसके ये तो अभी इसके अंदर से ये सारे जो गुण तूने डाले हैं वो तो निकलना शुरू हो गया, ये तो बहना शुरू हो गया है। एट दैट टाइम गॉड आंसर्ड एंड टोल्ड हिम दैट इट इज नॉट अ लीक, it is a tear, it is a tear of joy, it is a tear of happiness, it is a tear of support, it is a tear of sadness. Hallelujah. और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को जवाब दिया। स्वर्गदूत ने परमेश्वर से पूछा, अरे तूने जो पानी का इस्तेमाल किया इसको बनाने के लिए, देखो वो तो इनके आंखों से निकल रहा है, बह रहा है। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा, नहीं, ये वो पानी नहीं है, ये उस स्त्री का अपने आंखों से एक दुख के द्वारा, एक खुशी के द्वारा निकालते। So beautiful, her face made so beautiful that whoever just looks at it, even in the time of pain, even when they are so desperate, they will have immediate peace. Hallelujah. और उसने मुख को और उसके चेहरे को इतना अलग रीति से बनाया कि कोई भी अगर दुख में, परेशानी में हो और वो स्त्री के पास जाए, उनके परिवार में कोई ऐसी स्त्री होगी, उसके परिवार में माँ, बहन या कोई भी पत्नी होगी, उनको देख के वो सारे भूल जाते हैं। हालेलुया। Hallelujah. This is what God created in a woman,
whom he called a mother. Hallelujah. और ये रीति से परमेश्वर ने वो स्त्री को बनाया, वो स्त्री की रचना की, और आज उसको एक माँ के रूप में हम देखते, एक माँ के रूप में हम अपने जीवन में उसको लेते। हालेलुया। Hallelujah. To know more and more characteristics of this mother, of this woman, we will go to the book of Proverbs, chapter 31, verse 10 to 31. और हम ये और भी ज्यादा इसके बारे में इस परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Open our Bibles to Proverbs, chapter 31, verse 10 to 31. और हम नीति वचन को खोलेंगे 31 चैप्टर, Chapter 31. नीति वचन का हम चैप्टर 31 को खोलेंगे, verse 10 to 31. और 10 से लेके हम 10 से लेके 31 तक हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। हालेलुया। Hallelujah. 10 to 31। Yes. भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रीति विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है, और वह उन सन टूट टूट कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। Hallelujah. वह व्यवहार के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात दिन ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है, और अपनी लौंडियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है, और अपने विश्राम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दूर बनाती है। वह परख लेती है कि मेरी व्यवहार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अट्रेन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। हालेलुया। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय में हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। Praise the Lord. Amen. Just like God, wherever a mother goes, along with her family, along with her children, she brings pride, she brings happiness, she brings an abundance of joy wherever she goes. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की तरह जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे जीवन में कभी भी लज्जा नहीं होती। साथी बनकर किसके भी रूप में वो किसके भी साथ में जाएगी, कोई भी कार्य को करेगी।
एक परमेश्वर की तरह दर्शाएगी, परमेश्वर की तरह वो महसूस कराएगी। Hallelujah. हालेलुया। Just like God, just like how our God watches upon us from day to night. He never sleeps, He never slumber, He never takes rest. In the very same way, a mother always has her eyes over her children, over her family. She always takes care of them without 1 second of rest. She keeps working that they may be satisfied. Hallelujah. हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर हमारे लिए दिन रात हमारी चिंता करता है, हमें अच्छे अच्छे चीजों से तृप्त करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें हर एक शत्रु के जाल से, उनके वार से बचाने के लिए कोशिश करता है, उसी तरह माँ भी, जो घर की स्त्रियां होती है, वो भी इस कोशिश में, इस परिश्रम में लगी रहती कि मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन में कभी भी कोई संकट तकलीफ ना आए, कोई कमी घटी ना, किधर भी कहीं से भी उनके ऊपर कोई वार ना, कभी उन्हें चोट न लगे। हालेलुया। Hallelujah. Just like God, a mother has that power, has that strength to just finish and remove every kind of pain from their family members, from their children. It is just that magic. It is just that some kind of power that no one can ever express. Hallelujah. हालेलुया। और एक माँ, एक स्त्री घर की, वो भी एक परमेश्वर की तरह हमेशा ये इच्छा करती है कि उसके परिवार में, उसके बच्चों के जीवन में भी कहीं से भी, किधर से भी कोई भी तकलीफ मुसीबत न लेकर आए, कभी भी कोई भी परेशानी में न वो पड़े। हालेलुया। Hallelujah. That shows that every mother's role model is our living God. The way He loves, the way He cares, the way He provides, the way He gives us joy, the way He gives us happiness. That is the same thing that every mother does. Hallelujah. परमेश्वर ने अपने जो उनके अंदर जो उसके बनाए हुए मनुष्य के लिए तरस, प्यार, दया है, वो सारे गुण उसने स्त्री, जो घर की स्त्रियां रहती है, जो माँ रहती है, उनके अंदर डाल दिया। वो भी परमेश्वर की तरह अपने परिवार के लिए वो सारे चीजों को, बातों को करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। Praise the Lord. Hallelujah. In the same way, we will see that the love of God, how He has loved us. He made everything available for us in this earth. He gave us everything that we ever needed in this life. He gave us everything that we may never lack. Hallelujah. जैसे परमेश्वर ने जब हमारी मनुष्य की रचना की है, उसने उसके साथ साथ खाली उनको बना के छोड़ नहीं दिया है। उनकी जरूरत, उनको क्या चाहिए, उनको किस समय में क्या चीज की जरूरत होती है, उसको भी बनाया, उसकी भी रचना की, और सारे सुख सुविधा के द्वारा उसने मनुष्य को इस संसार में रखा। हालेलुया। Hallelujah. But still we do not value, we do not know the value of that love, that eternal love that never ends. We have never understood the value of it till now. Hallelujah. और हम देखते आज मनुष्य उस प्यार की, उस जो रचना, जो परमेश्वर ने हमारे लिए सारी सुख सुविधा को बनाकर हमें इस संसार में रखा है, वो उसकी चीजों की तो वो मजा ले रहे, आनंद उठा रहे, लेकिन उस बनाने वाले की उनकी कोई याद नहीं, कोई कदर नहीं, कोई भी उनका उसमें वो याद नहीं कर रहे कि किसके वजह से हम ये सारी चीजों को देख रहे या हमारे जीवन में आ गया है। हालेलुया। Hallelujah. They take everything for granted, just how a worldly mother, every problem of a worldly mother, that their children take their love for granted. और Hallelujah. आज हम देख रहे हैं माओ को, जो बच्चों को वो इतना सारे तकलीफ से, दुख से पैदा करके संभाल के बड़ा करते, और जब बच्चे बड़े हो जाते, अब समझदार हो जाते, तो वो जो माँ उनके लिए किया है, जो परिवार पेरेंट्स उनके लिए करते हैं, वो सारी चीजों को भूल जाते, और वो जो अपना करना चाहते, अपने जीवन में वो बनना चाहते, पाना चाहते, उसमें जब वो मिल जाते, उसमें शामिल हो जाते, वो सब उनके लिए हो जाता है, तो वो जो उनको तैयार किया था, जो उस जगह तक उनको पहुंचाया, वो उनको छोड़ देते। हालेलुया। As the Bible tells us that God is a caretaker. God is like a mother chicken who always holds her children within her arms, within her wings, that no predator, like no any other animal would come and harm her kids. But we
we take it for granted, and we leave that shelter, that and we leave that protective layer, and we think that I can do everything on my own, I don't need anyone's protection. Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को जब वो अंडे से निकलते अपने पंखों में छुपा लेती, अपने परमेश्वर ने हमें रखा है। और जब माँ बच्चों को पैदा करती है तो बच्चे को वो इसी तरह संभाल के रखती है। लेकिन जब बच्चे समझदार हो जाते और बड़े हो जाते और वो संसार की सारी चमक दमक को देखते, तो वो उसकी जो पंख है, जो उसकी छाया है, उसमें से निकल कर अलग होकर वो अपनी दुनिया के लिए चले जाते। Hallelujah. They leave the comfort of the mother, they leave the support of the mother, they leave the protection of the mother, they come out of that shell and they try to go on by themselves. Hallelujah. और वो समझते हैं कि खाली वो उनको पकड़ के रखा है, वो पंख, वो जो माँ का जो बाह है, जो उनके लिए जो वो पकड़ के रखती है, अपने बाहों में बच्चों को लेके रखती है, वो समझते कि खाली वो हमको ऐसे पकड़ने के लिए। लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि उसके द्वारा कितने बुरे बुरे काम, बुरे बुरे चीजों से, बुरे बुरे हथियार से वो उनकी रक्षा करती है। लेकिन जब वो समझदार हो जाते, वो सोचते नहीं, हमें इसमें नहीं रहना है, हम अलग जाकर अपनी अलग इससे चलेंगे, अपनी अलग योजना बनाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. Today we see old age homes, even in this time of this pandemic, they are full. There is no empty rooms. There are so many parents, there are so many mother and father, not even old age homes, in their villages, in their home alone, trying to survive by themselves. We see mothers, we see parents there alone without their children, even have, and they don't even have any care, they don't even feel that how will my mother or my father go through this. Hallelujah. हालेलुया। और इस समय में हम देख रहे हैं, जब ये तकलीफ चल रही है, महामारी, ये सारे मृत्यु के समय में लोग, जो बच्चे हैं, अपने माँ बाप को, अपने जो माँ बाप जिन्होंने उनको बड़ा किया, जिन्होंने उनको इतना संभाल के पढ़ा लिखा के वो जो जगह पे आज वो लेवल पे जो आज उधर पहुंचा था, लेकिन उन्होंने जब वो उम्र हो गया उनका, वो जब अभी कमजोर हो गए, तो उन्होंने उसको वो ओल्ड एज में डाल दिया, जहाँ पर बड़े उम्र के लोगों को रखा जाता है, जिनका कोई नहीं रहता है, जिनको कोई संभालने वाला नहीं रहता है। वहां पर देखो पूरा भरा हुआ है, एक भी बेड वहां पर खाली नहीं है। गांव में देखो, वो जब गांव से निकले हैं, माँ बाप का जमीन जायदाद बेचकर उन्होंने अपना लाइफ को बनाया, उन्होंने बच्चों ने अपने लाइफ को उस लेवल पे लेके गए। लेकिन आज वो माँ बाप गांव में अकेले बेसहारा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आज उनका एक फोन भी वो नहीं करके उनको बात करते, इतने कठोर हो गए बच्चे। It is very, very painful to see that the way we behave with our worldly mothers, the way we behave with our physical mothers, it is the very same way we behave with our eternal mother, our spiritual and our everlasting mother. Hallelujah. और इसी तरह आज देखो बच्चे लोग का जो ये करना बहुत ही वो परिवार में माता पिता के लिए दुखदायक है, बहुत दुख देता है, बहुत ही बड़ा जख्म है उनके लिए। इसी तरह से उनको भी जो परमेश्वर जो एक माँ की तरह हर मनुष्य को संभालता है, उनकी हर जरूरतों को पूरा करता है, उनके ऊपर वार होने से पहले वो अपनी शरीर में वार ले लेता है। ऐसे पिता को भी हमारे गलत कार्यों के द्वारा, गलत चाल चलन के द्वारा उन्हें भी हम दुखी करते, उन्हें भी हमें वो दर्द देते। हालेलुया। God gave those tears to a mother that their child may bring honor, that their child may bring pride to them, and that tear might be of a joy. But in this day that we are in today, we see that every tear that falls out of a mother's eyes is of sorrow, is of deep pain. Hallelujah. और वो जो आंखें आंसू जो स्वर्गदूत ने पूछा था
कि ये किस लिए है, तो वो आंसू इसलिए था कि जब बच्चे अपने जीवन में सफलता पाए, या बच्चे कामयाब हो जाए, या बच्चे कुछ अच्छा जगह पहुंच जाए, अच्छे जगह पे करने के द्वारा चले जाए, वो खुशी के आंसू है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को दुख देने के द्वारा, गलत व्यवहार करने के द्वारा वो माँ बाप के आंसू निकल जाते हैं। हालेलुया। Hallelujah. But the mother, the everlasting mother, never forgets, never forsakes. She still looks out for her child. She still finds her child that she has hope that my child will come. I know, I believe. हालेलुया। और इसके द्वारा भी, ऐसे उनके गलत स्वभाव के द्वारा भी, माँ हमेशा तैयार रहती है, माँ हमेशा रास्ता देखती है कि नहीं, मेरे बच्चे कभी न कभी वो उस रास्ते से, जहाँ से वो इधर से मेरे पास से दूर हो गए थे, एक बार वो रास्ते से मैं उनको loves us even after we hurt him multiple times, even after we forsake him again and again, he's still there. He's still standing there waiting for us, waiting that yes, my child will come back to me. I know, I believe. हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर भी, जो इस वक्त मनुष्य, जो इंसान, जो परमेश्वर ने जिनकी रचना की है, आज वो भटक गए, अपने अपने मार्ग पे चले गए, अपने हाथों से बनाए हुए अपना अपना उन्होंने परमेश्वर को चुन लिया है। लेकिन फिर भी प्रभु उनको उनको पश्चाताप करने के लिए समय दिया हुआ है, और वो चाहता है कि वो पश्चाताप करे, और जिस तरह वो भटक गए, गलत मार्ग में चले गए, वही रास्ते से वो वापिस मेरे पास आ जाए। वो यही इच्छा में, यही वो उनकी आशा है, और वो देख रहे, उनकी आंखें हम पे लगी हुई है। हालेलुया। And on the other end, there are mothers, there are women who really don't have that heart of motherhood. They would just be in their own, they would be busy in their work, they would be busy in their own thinking. They will never look at their child, they will never see their family, they will forsake their work, they will forsake their responsibility and go on enjoying their own lives. Hallelujah. और एक दूसरी तरह की के भी ऐसी माएँ होती है जो सब कुछ उनके पास रहता है, सब आशीष, सब उनके परिवार में रहते, फिर भी वो उनको कुछ उनका कदर नहीं है, उनका कोई भी उनको वो उनके संगति में नहीं चाहती है, नहीं रहती है, और वो अपने संसार के कामों में, संसार के जो उनके कार्य है उसमें वो अपने आप को व्यस्त करती है, और कभी भी ये जानती नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करती कि उनके परिवार, उनके बच्चों को कितनी उनकी कमी होती है। Hallelujah. They do not think that my child will be needing me at this time. Oh, this is my child is sad, I have to go and comfort him. No, they will never think like this. They will think that am I bound to that child? It is not important for me to stay there. It is not important for me to be there always and look at that child or my family. हालेलुया। और वो ऐसे उसकी सोच बना ली है कि क्या मैं बच्चों को क्या हमेशा अपने बाहों में लेके चलूं, या उनके लिए मैं हमेशा घर में रहूं? क्या मैं और काम नहीं है मुझे, मैं और काम के लिए नहीं हूं, मैं और दूसरे काम में बिजी हूं, मेरा दूसरा भी बहुत सारा काम है, मैं खाली उनके साथ नहीं रह सकती हूँ। Hallelujah. As I said in the beginning, that every mother's role model is our God. She looks at the love of God. She knows, she experiences the love of God, and that's how she behaves with her family. That's how she behaves with her children. And the mothers who do not care about their children, who do not care about their family, they don't know about the love. They do not ever seek the love of God. Hallelujah. और जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि हर जो माता है जो बच्चों को जन्मी है, वो एक परमेश्वर का, एक जो परमेश्वर का प्यार, जो परमेश्वर का
रूप उनके द्वारा दर्शाता है। और जो माएँ जो परिवार और बच्चों को ज़्यादा स्पेशल या ज़्यादा उसको समय इम्पोर्टेंट नहीं दे सकती है, उसने परमेश्वर के प्यार को जाना नहीं है, चखा नहीं है, इसलिए परमेश्वर का प्यार उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों परिवार का कदर नहीं करती है, उनके साथ रहना पसंद नहीं करती है। Hallelujah. Every mother has to be a role model for her child. That as a child looks at her, when a child eyes falls upon her mother, they may feel that yes, see my mother, how beautiful, how loving, how caring she is. Even I have to change my behavior. Even I have to be like her. Even I have to change my character and be as loving and as caring as her. Hallelujah. आज जो भी बच्चे बनते हैं या सीखते हैं, वो अपने ज्यादा करके माँ को देखे, क्योंकि पिता हमेशा बाहर रहते, काम करते या अपने कोई भी कार्य में बिजी रहते, लेकिन माँ हमेशा उनके साथ रहती है। तो आज जो भी बच्चे बनते, जो भी उनका चाल चलन स्वभाव है, वो माँ को ही देख के बनते, माँ के ही द्वारा होता है। अगर माँ अच्छी है, माँ प्यार करने वाली है, माँ अपने परिवार को संभालने वाली, बच्चे भी उस तरह बनते। अगर माँ कठोर है, माँ नफरत करती है, माँ झगड़ालू है या माँ परिवार का देखभाल नहीं करती है, तो बच्चे भी उस तरह बन जाते। वो बच्चों को सिखाने के कारण है। हालेलुया। Hallelujah. In my family, my mother and every of our sisters, my aunt, they are a perfect role model of motherhood. They are a perfect mother. They have taken care of their child. They have embraced their child. They have given a perfect teaching. They have given a perfect way to their child. And today, even their children are in the Lord, are मेरे जो मम्मी है और मेरे मम्मी की जो बहन लोग है, वो सारी के बच्चे हैं, और वो बच्चे नहीं भी है तो भी उनका हृदय, उनका चाल चलन, स्वभाव, बात करना एक परमेश्वर का रूप दर्शाता है। उनके बातचीत में, उनके हमेशा बच्चों के लिए खड़े रहना, बच्चों के लिए हमेशा लड़ना, बच्चों के लिए हमेशा मदद करना, पर वो एक परफेक्ट एक अच्छी माँ को दर्शाते। Hallelujah. Even as for me, my own life testimony, I have grown up looking at my mother. I have grown up seeing my mother, everything she does, the prayer she does, the service she does, everything I have seen, and I have grown up to be who I am today. Hallelujah. हालेलुया। एंजल बोलती है, अब जो भी मैं बनी हूँ या जो कर रही हूँ, मैं अपने मम्मी को देखकर ही कर रही हूँ। जैसे मेरी मम्मी परमेश्वर की स्तुति करती है, घर के कामों को करती है, और हमारे लिए जो करती है उसको देख देख के मैं उसकी तरह करती हूँ, और आज जो भी मैं हूँ अपने मम्मी को देखकर ही हुई हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My mother does not only has a caring behavior towards me, she does not have a caring behavior only towards her family, but she has a caring and a loving and a comforting behavior to everyone who comes desperately, in desperation, in need of prayer to her. She is always ready with a heart of motherhood, with a heart of comforting, with a mouth that gives so much peace that just when the person hears her prayer, when the person listens to what she says, the person is filled with peace and they forget each and every of their sorrow. Hallelujah. हालेलुया। और एंजल की मम्मी सिर्फ घर के लिए ही नहीं, और जो भी उसके पास दुख में आते या टूटे हुए आते, उनको भी प्रार्थना के द्वारा या बातचीत के द्वारा उनको उनके दुखों से शांति के लिए, और जब भी वो बात करते, जब भी वो मिलते हैं, तो वो लोग बदल जाते, उनका दुख तकलीफ दूर हो जाता है, और वो फिर से परमेश्वर की शांति में आ जाते हैं। Hallelujah. Because of her, I love my God. Because of her, I respect who my God is, because He is the one who created her like this. I always look unto God to bless, always bless my mother, always have eyes upon her, that she may always be a role model, that she may always be a comforter that she is today. Hallelujah. हालेलुया। और एंजल के मम्मी के ये सारे करने के द्वारा
वो एंजल परमेश्वर के इतने नजीक आ गई है, प्रभु पर इतना विश्वास करने लगे और उसे पता है परमेश्वर ने उसके मम्मी को ऐसा बनाया है, तब परमेश्वर को वो बहुत प्यार कर रही है, परमेश्वर की बहुत ही वो जो भी परमेश्वर कहता है उसको मानती है, क्योंकि उसके माँ के व्यवहार के द्वारा वो जानती है परमेश्वर कितना भला होगा। Hallelujah. I know, I believe that many mothers out there, even they today are a role model. Even they today are a role model to their children, that whenever their children see them, a complete different goodness, a complete different nature just comes upon them, and they become God fearing, and they grow up in the fear of the Lord, and they completely change. Hallelujah. और इसी तरह जो और माताएं हैं जो जिसके बच्चे हैं, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, वो भी इस तरह से बनने के लिए या बन जाए, और परमेश्वर ने जैसा उनको जिस कारण वजह से बना, परमेश्वर चाहता है माँओं के द्वारा वो अपने आप को इस दुनिया में दिखाए। तो बच्चों को वो अपने व्यवहार के द्वारा, बच्चों को अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के करीब लेकर आने के लिए वो ये कार्य करे। हालेलुया। Hallelujah. The Bible tells us that children should be in a way that when their parents, that when their mothers look at them, they should rejoice in joy, that they should be proud that yes, I have raised my child in the fear of God. Hallelujah. और परमेश्वर का वचन भी यही हमें सिखाता है कि जैसे माँ बाप के स्वभाव चाल चलन परमेश्वर के लिए है, उसी तरह से परमेश्वर माँ बाप भी बच्चों के लिए यही एक करने के लिए उनको शिक्षा दे, और यही उनके द्वारा बच्चे सीखते जाए। That every mother should be a role model for their child, that every mother should be a perfect example of motherhood in front of their child, that whenever their child sees them, they will just fill with love, they may be filled with joy, that my mother is so God fearing, that my mother is such a good comforter, that whenever I just look at her, I feel that I feel that God is standing in front of me, and whenever she embraces me, it feels like God has taken me under his wings. Hallelujah. और इसी तरह से माँ बाप एक परमेश्वर का उदाहरण बनके उदाहरण बनना चाहिए, तब पर बच्चे जो है में हो रहा है सारे गंदगी पाप उसको न मान के, उसको उसके पीछे न जाकर वो अच्छे अच्छे जो परमेश्वर का है, जो प्रभु चाहता है, जैसे परमेश्वर ने माँ को, जैसे शुरू में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस तरह वो बनते जाएंगे। Hallelujah. Every child must honor a mother, because everything a mother does, everything a mother goes through for her child, it should be respected, it must receive honor. Hallelujah. हालेलुया। सारे बच्चे अपने माँ को बाप को आदर करना चाहिए, क्योंकि यही बच्चों का काम है, और परमेश्वर भी यही बच्चों के द्वारा चाहता है, क्योंकि आज अगर माँ बाप को वो ठुकराएंगे, कल वो भी माँ बाप बनेंगे, तो बच्चे जैसा उनको देखेंगे उस तरह वो भी बन जाएंगे। अगर आज बच्चे देख रहे कि आप अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हो, नहीं प्यार कर रहे हो, उनकी चिंता नहीं कर रहे हो, कल वो बड़े हो जाएंगे, वो भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। Hallelujah. Every child must even honor God, because he is our eternal mother, he is our eternal father, he is the one who looks after us, our mother, our physical mothers and our family. Hallelujah. हर बच्चे ये समझ जाए और ये करे कि परमेश्वर को हम आदर दे, परमेश्वर का मान सम्मान करे, क्योंकि वो हमारा माँ बाप के पहला वो हमारा आत्मिक पिता है, उसने ही हमारे अच्छे माँ बाप को हमारे लिए दिया और हमको उनके पास भेजा है, तो हम माँ बाप के पहला उस परमेश्वर का भी आदर करना चाहिए। अगर हमारे माता पिता ने हमें ये सिखाया है, हमारे माता पिता के चाल चलन स्वभाव बातचीत के द्वारा हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद और आदर देना है। Hallelujah. We should not take every love, every kindness,
everything that God gives to us, we should not take it in granted, because today we might never be able to understand the value of that love, but when we will be desperate, we will not be able to find that love. Hallelujah. आज हम अपने जो हमारे माँ बाप का प्यार, हमारे माँ का जो हमारे लिए किया हुआ परिश्रम को हम छोड़ देंगे, या हम भूल जाते, या हम उसको याद नहीं करना चाहते, लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए और हम उसको देख न सके। आज मेरी एक दोस्त है जो मम्मी को आज बहुत याद करके, क्योंकि उसकी मम्मी अभी कुछ दिन पहले परमेश्वर के पास चली गई है, और आज उसको वो जो माँ ने उसके लिए किया था, माँ जो उसके लिए करती थी, उसको याद आ रहा है, और आज वो बहुत तरस रही है, बहुत ही आज वो दुखी है, और वो चाहती है काश मेरी माँ आज जिंदा होती तो मैं उसको गले से लगाती लेती थी, बहुत सारा प्यार करती, लेकिन वो समय चला गया, वो दिन चला गया। अब उसकी माँ वापिस कभी वो दुनिया में उसको देख नहीं सकेगी। इसी तरह ज्यादा देरी नहीं हो जाए। अभी अगर आपके माँ बाप जिंदा है, आपकी माँ जिंदा है, और आपने उनको कभी दुख दिया, आप उनसे दूर है, आप उनको याद नहीं कर रहे हो, अभी समय है, आप जल्द से अपने माँ बाप के करीब आ जाओ और उनको वो सारे आदर प्यार दे दो। हालेलुया। Hallelujah. Today we must value the love of our mothers. We must value the care and the everything that she does for us. We have to value it, because it might be too late. It might be too late, because everything we are seeing now, the situation we are going through now, we don't know what might end up happening. We don't know what might happen. So every day of our life, not just Mother Day, not just, we don't have to just pick one special day to show our love to our mothers. We every day we have to show our love, our respect, our honor to our mother, that even they should know that whatever I am doing, that whatever I am trying to teach my child, it is becoming fruitful, and my child is growing in the way that I want her to be. Hallelujah. हालेलुया। इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बिना कारण वजह मृत्यु आ रही है, मृत्यु इंसानों को खा रहा है। इसके पहले कि आप अपने माता पिता को फिर न देख सको, अभी मौका है, दिन है, और अपने आप को आप बदल दो, चेंज करो, और जो कुछ भी आपने अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार, गलत चाल चलन किया है, उसको सुधारो, उसको आप दूर करो, और जाके अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ के साथ मेल मिलाप करो, उसका आदर करो, उसका मान सम्मान करो, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। और ऐसा ही जो माँ बाप ने चाहा था कि हमारे बच्चे परिवार बनाए या उनका जीवन सफल हो जाए, वो आगे बढ़ जाए, ये पर माँ का ही हमेशा प्रार्थना रहता है, ये माँ बाप का ही हमेशा आशीष रहता है, ये आशीष हम खो ना दे। इसलिए हमें उस परमेश्वर का जो प्रभु ने हमारे माँ बाप को दिया, जिसके द्वारा आज हम यहाँ पर पहुंचे, उसका आदर करना है। हालेलुया। We have to love, we have to honor, we have to give all of our honor to our parents and to our God. We have to tell them how much they mean to us. We have to tell our God, our mothers, that how much they have influenced our life, what is their influence in our life, and how they have helped us grow throughout the years. Hallelujah. इसी कर ऐसे करने के द्वारा, इस रीति से करने के द्वारा हम भी दर्शाए, हम भी दिखाए कि हम उनको कितना प्यार करते, हम उनको कितना आदर करते, हम वो नहीं है, या हम उनसे जब दूर रहते कितनी कमी हमें उनकी महसूस होती है। ऐसा ही परमेश्वर को हमें दिखाना है। प्रभु का भी यही इच्छा हमारे लिए होती है कि हम उसको हमेशा धन्यवाद दे और उसके किए हुए उपकारों को कभी ना भूले। हालेलुया। Hallelujah. If we must all be knowing about Winston Churchill, when a London editor was writing about him, he was writing about all the teachers who
who teached Winston Churchill, they were writing each and every name of each and every those teachers who were ever in the life of Winston Churchill. But after when he saw that report, when the editor showed Winston Churchill that report, he saw, where is my most important teacher, my mother? You didn't write her name. You forgot to write her name. Write her name, because she was the first and the last teacher of my life. Hallelujah. और विंस्टन चर्चिल को हम सब जानते होंगे, क्योंकि जब उस समय में पहले जब वो थे, तो फिर एक लंदन के एडिटर, एक रिपोर्टर ने उनके जीवन में जो भी सारे शिक्षक थे जिन्होंने उनको सिखाया था, उन सब के वो नाम लिख रहे थे कि ये सारे शिक्षक विंस्टन चर्चिल के जिंदगी में थे। और जब वो एडिटर, जब वो रिपोर्टर ने जाके विंस्टन चर्चिल को वो दिखाया, वो पेपर दिखाया जिसमें उन्होंने सारे वो टीचर्स का, वो शिक्षकों का नाम लिखा था, विंस्टन चर्चिल ने उनसे कहा कि आपने मेरी माँ का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो मेरी पहली और मेरी आखिरी शिक्षिका है जिसने मुझे मेरे जीवन के सबसे अच्छे चीजें पढ़ाए। हालेलुया। That's how every mother has to be. That's how every mother has to be a teacher, a best friend. They have to raise their child in a way that when their child grows up, when they become successful, the first name that the child should utter after their success, when anyone asks them that who is the reason behind your success, they must say, my mother. My mother is the reason behind who I am today. My mother is my reason who raised me in a way that today I have become so successful. Hallelujah. हालेलुया। इसी रीति से हम अपने माताओं को आदर करना चाहिए। पहला हमारे माता का, हमारे परिवार, हमारे पिता का नाम हम रखना चाहिए, क्योंकि जो भी आज हमने सक्सेस को, जो भी हमने पोजीशन को लिया है, जो भी हम आज ऊंचाई पे है, उनके बिना हम नहीं जा सकते थे। हमारा जो भी टीचर और जो कुछ भी हमारे उस जगह को पहुंचाने के साथ जुड़े थे, उसके पहले हमारी माँ थी। इसलिए हम परमेश्वर का जो हमारे लिए दिया हुआ माँ को, जो हमारे साथ जिसको जुड़ाया था, उस माँ को पहला उसका आदर उस नाम के द्वारा देना चाहिए। उस माँ को हम पहला उस मान सम्मान का भागी बनाना चाहिए। हालेलुया। Before, when we used to pray, when I was little younger of my age, my mother used to preach while praying, and only we both were praying. And that time mama used to preach. I used to think that who is listening right now? Only I am sitting up. Why is she preaching today? Why is she preaching now in this prayer? But today, now I understand the value that every preaching she gave at those times, every preaching, every word she shared at that time, today is working in my life. Today I am going through it. Today I am using those words to go to increase in the faith of God. Hallelujah. हालेलुया। जब हम दो, मेरी बेटी छोटी थी, एंजल छोटी थी, और हम दोनों प्रार्थना करते थे, तो एंजल बहुत छोटी थी, उसको समझ नहीं आता था, लेकिन वो सोचती थी मेरी मम्मी इतना क्यों बात करती है, अभी तो कोई है भी नहीं हमारे बाजू में, हम किसी के साथ भी नहीं है, वो क्यों इतना एक प्रीचिंग के जैसा प्रार्थना करती है। लेकिन आज वो समझ गई है कि उसके द्वारा वो मुझे उस समय सिखाती थी, और आज वो सारे वो जो परमेश्वर का साथ बात करना, परमेश्वर को जो एक बात के द्वारा वो जो प्रार्थना करना, आज वो कार्य में आ रहा है। वो उसके ही वजह से आज वो यहाँ तक या इतना बात कर पाई है। Hallelujah. Even before, when my mother used to, she just talking, I don't understand what she is trying to say, and I would get scared. I would try everything possible, because she used to be in so much fire, she used to be in so much anointing. She would not even stop after I would hit her. I would tell her to stop, don't stop, just stop it, I'm not able to understand what are you trying to tell. But today, when we both together, when we pray in tongues, when we come into the presence of God with complete anointing, now I understand what she used to do and how she used to speak to God in that way. Hallelujah. और जब हम दोनों प्रार्थना में रहते थे, एंजल अपने मम्मी के साथ, तो जब पवित्र आत्मा से भर के जब अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी उसकी मम्मी, तो वो ऐसा सोचती थी कि ये क्यों, ये कौन सा है, और वो था
वो डरती थी कि ये कौन सा भाषा और इतना आवाज, इतना एकदम पावर के साथ ये कैसे बोलती है, क्या बात करती है। लेकिन वो करने के द्वारा आज जो वो परमेश्वर के कार्य हम कर रहे हैं, यही वो वजह थी, यही कारण था, आज उसको समझ में आ रहा है। Hallelujah. Praise the Every Lord. child, as they grow old, as they grow more and more wiser day to day, they should not be the person who would make their mothers weak in their old age, that would make their mothers grow weary in their old age. But as a child grows older every day, as the child goes wiser every day, they must be a strong supporter of their mother, that whenever their mother bees with them, that whenever their mother is with them, they may feel that it is not my child, this is my supporter. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। और आज जो बच्चे जवान हो गए और उनकी माता पिता बूढ़े हो गए या उम्र वाले हो गए, वो ये जवानी या ये सब उनके अंदर जो ताकत सब आया है, ये उनके माँ और बाप के द्वारा ही आया है। ये सारा उम्र जो उनके ऊपर आया है, उन्होंने अपनी जवानी उनको दी थी। उनकी जवानी के समय उन्होंने वो ताकत, वो सारा बल उनके लिए लगाया था। आज वो कमजोर हो गए क्योंकि उन्होंने सारा अपना ताकत पावर बच्चों को दे दिया है। तो वो कमजोरी के समय माता पिता को छोड़ना नहीं चाहिए। माता पिता को वो अपना ताकत के साथ उसी तरह जैसे माँ बाप ने उनको संभाला और आगे बढ़ा, माँ बाप को भी वो इसी तरह संभाल के उनको बाहों में उठा के लेके चलना है। और उनको कभी ये महसूस नहीं कराना है कि तुम उम्र वाले हो गए, अभी तुम कमजोर हो गए हो। ऐसा दिखाना है कि नहीं, चाहे आप उम्र हो गया आपका, आप कमजोर हो गए, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत हूँ। हालेलुया। Every day, each and every day of your life, show your love to your parents, show your love to your mother, show your love to your God, that they may know that this is my child, that this is my true child, and I will love him forever, that this child will always be with me forever and will never leave me and will never forsake me. Hallelujah. और ऐसे करने के द्वारा हम हमेशा अपने माँ बाप को ये दिखाते रहे, ये दिखाना चाहिए कि हम कितना आपसे प्यार करते हैं, हम आपका मान सम्मान करते हैं, हम आपकी कितनी चिंता करते हैं। और ऐसे करने के द्वारा माँ बाप जो कमजोर हो गए, वो अपने शरीर में एक नया बल को पाते हुए देखेंगे। Hallelujah. From today onwards, from this very day onwards, we will show that love, we will show that care to our mother and to our God. We will show them that yes, you value in my life, that you really matter in my life. We have to show them, and then they will realize that yes, this is my child, this is my true child, and forever I will embrace it within my wings. Hallelujah. और आज जो माँ बाप को जो नफरत दिखा रहे, जो अकेलापन दे रहे, उसके द्वारा जो माँ बाप के आंसू बह रहे, वो दुख के है, वो एक टूटा हृदय चोट के द्वारा निकला है, वो एक दर्द के लिए निकल रहा है। लेकिन जब हम ऐसा करते, उनके कमजोरी में, उनके उम्र बढ़ने के समय में उनका साथ देते, उनको लेके चलते, तो वो खुशी के आंसू उनके अंदर से, वो दुख का नहीं, खुशी का आंसू निकलेगा। और वो कहेंगे हाँ, हमारा जो ताकत सामर्थ हमने अपने बच्चों पे लगाया वो व्यर्थ नहीं गया। आज हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े और हमारी वो चिंता करते, हमसे वो प्यार करते, और वो उनका खुशी का आंसू हमारे लिए और हमें बढ़ोतरी में सहायता करेगा। हालेलुया। May God bless each and everyone who has heard and who has listened and who is going to bring these words in action from today. May God's grace be upon you, may God's mercy be upon you, and may God bless you, and a very very happy Mother's Day to each and every mother. Hallelujah. और परमेश्वर सबको आशीष करे। और जो कोई भी उनको चोट पहुंचाई है, वचन के द्वारा परमेश्वर उनको उनके अंदर बदलाव लेकर आए और उनके माँ बाप के करीब लेकर जाए, और माँ बाप के लिए चिंता को उनके अंदर डाले, और माँ बाप का प्यार जो वो लोग ने निकाल दिया वो वापिस से उनके अंदर आए,
और वापिस से वो अपने माता पिता के प्यार को समझे और उनको भी वैसा ही प्यार के लिए उनको इच्छा करे। यही हमारी प्रार्थना है, परमेश्वर की भी यही इच्छा है। और ऐसे करने के द्वारा हमारा जीवन कभी भी हम अपने जीवन में कभी हम फेल नहीं होंगे, बल्कि हम बढ़ते जाएंगे और आशीष पाते जाएंगे और हम कभी भी हमारे जीवन से शांति नहीं जाएगी। प्रभु के परमेश्वर का यही वचन में लिखा है और यही हमें करता रहना है। परमेश्वर सबको आशीष करे और सबको परमेश्वर बच्चों को ज्ञान बुद्धि दे। बच्चों के जीवन में जो भी प्रभु ने दिया है वो कभी खोए नहीं, कभी उनको उनके पास से दूर ना होने पाए। यही परमेश्वर और उनके माँ बाप की इच्छा है। हम प्रार्थना करेंगे, हम एक प्रार्थना करेंगे इस वचन को परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे जीवन में कार्य में आए वचन के द्वारा, यीशु के नाम से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एंजल, आई एम प्राउड ऑफ यू and I'm very happy that you are my daughter. God bless you with abundant blessing in Jesus mighty name, and God use you mightily for his glory in Jesus name. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद ओ पिता राजा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आदम महिमा तुझे मिले। प्रभु ये जो छोटी बच्ची है पिता परमेश्वर, लेकिन तू परमेश्वर तेरा आत्मा प्रभु उसके ऊपर उंडेला ला। तूने कहा है परमेश्वर जब बड़े भूल जाएंगे, जो बड़े जो मेरे सेवा में थे, जो मेरे साथ थे, जिनको मैंने अपने इच्छा के जैसा अपने कार्य के लिए चुना बुलाया, वो जब मेरी नहीं सुनेंगे मैं बच्चों को खड़ा करूंगा। हालेलुया। और तेरा वचन कभी झूठा नहीं होता है, फेल नहीं होता है। आज परमेश्वर जितने भी बच्चे प्रभु, जितने भी बच्चे पिता परमेश्वर, वो माँ बाप ने प्रभु जिनको जिनके माँ बाप है, जिन्होंने प्रभु एक आशा से, एक खुशी से कितना विनती मांग के, कितना प्रार्थना करके बच्चों को प्रभु ओ लॉर्ड तेरे पास से मांगा है, लिया है प्रभु, वो उनके घर में पैदा हुए हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर एक बच्चों के लिए मांगते प्रभु। आज ऐसे जो भी प्रभु कठोर हृदय हो गए, जो संसार में भटक गए, बुरी आदत संगति में फंस गए, आज हर एक बच्चों को छू ले प्रभु, तेरा आत्मा छूने दे प्रभु, तेरा आत्मा प्रभु ओ लॉर्ड इस हर एक ऐसे बच्चों को प्रभु बदले प्रभु। हालेलुया। हर एक बच्चों को परमेश्वर अपने माँ बाप के लिए दया दे, प्यार दे प्रभु, अपनापन दे। हालेलुया। लॉर्ड हम प्रार्थना करते माँ बाप भी जो प्रभु अपने बच्चों को परमेश्वर अपने साथ कभी प्रभु रखने के लिए इच्छा नहीं करते, उनके साथ समय नहीं बिताना चाहते, ऐसे माँ बाप को भी तू बदल लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ये तूने परिवार दिया, तूने उनको प्रभु परिवार, बच्चे, माता पिता दिया, एक दूसरे को प्रभु, एक दूसरे को प्यार के बंधन से बांध प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रभु इच्छा करे, एक दूसरे के लिए मान सम्मान दे प्रभु, आदर दे लॉर्ड जीजा, एकता के आत्मा से हर एक को परमेश्वर तू भर दे लॉर्ड। हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करते आने वाले समय में बहुत सी ऐसे प्रभु बातें को प्रभु हम सुनेंगे और देखेंगे, लेकिन जो तेरे प्रभु वचन पे चलते, तेरे वचन को पकड़ के चलते, जो तेरे विश्वासी है प्रभु, जो परमेश्वर जिन्हें तूने प्रभु अपने आत्मा से भरा है प्रभु, आज वो परमेश्वर परिवार, वो बच्चे कभी भी प्रभु तेरे वचन को छोड़ेंगे नहीं, तेरे वचन से भटकेंगे नहीं, कभी भी अपने बुरे प्रभु ओ लॉर्ड स्वभाव से माँ बाप को दुखी नहीं करेंगे। हालेलुया। पिता हर परमेश्वर जो प्रार्थना सुन रहे, जो प्रार्थना को प्रभु जोड़े, जो भी परमेश्वर ओ प्रचार को प्रभु सुन रहे, हर एक के जीवन में बदलाव को आने दे, हर एक के जीवन में बदलाव को आने दे, हर एक के जीवन में बदलाव को आने दे। ये वचन, ये प्रार्थना प्रभु, ये परमेश्वर प्रीति हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु, एक भी खाली ना जाने पाए। हालेलुया। सारी आदम महिमा तुझे देते, सारी आदम महिमा तुझे देते, यीशु के नाम से मांगते। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।